क्लास ले लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप काम करते रहिए यहाँ पे। क्लास ले लो। पानी मिला दो। पानी पी लो यार, मतलब झूठा तो कुछ नहीं है बट
Hi everyone. It's going. Good afternoon, ma'am. There. Oh. How are you all? How is Anupam now? तो आज आप में से कौन मॉक इंटरव्यू करना चाहेगा मेरे साथ? Sandeep? Yes, ma'am. Are you okay to have a mock session today? Yes, ma'am. Okay, great. Let's just wait for one more minute. Let other also join, and then we'll start. I'll just take the personal and negative triads today, and after that we'll do one mock session, maybe as per the time, whatever time will be available. Okay. मैंने लिया LBP 00 पर Let me just share. ये वाला वापस अरे नहीं उसका कोई फोन आ गया था तो शायद किसी ने अपने नेगेटिव वगैरह कर दिया तेरा सर वहां से सामान नहीं है उसको समझाया भी Sharing my screen, okay? तो रिकवर से फोन करवाया तो क्या है कि तुम लोग बस सेल्फ इंट्रोडक्शन कर रहे थे, राइट? सेल्फ इंट्रोडक्शन में we actually have to also, after self introduction, that we know what exactly we have to tell about our introduction to the interviewer or to anybody. as a formal introduction जो होता है उसमें जो भी contents हैं, whatever contents are available, हमने वो कल पढ़ लिया था, that okay, these are 4 things which we will be concluding or which we will be including in our self introduction. After that, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रायड्स होते हैं, इनको हम किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में, और नेगेटिव चीजों को हमें किस तरह से पॉजिटिवली दिखाना है, वो हम आज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. लेट मी जस्ट शेयर दी सिलेबस अगेन. ये देखिए, इफ यू कुड सी सेल्फ इंट्रोडक्शन, थर्ड लाइन यूनिट 3, हाईलाइटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रायड्स. ये टॉपिक सिर्फ हमारा बचा है यूनिट 3 में, जो हम आज में होपफुली कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन यूनिट 3 इज कंप्लीटेड. ओके, सो हाईलाइटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रायड्स का क्या मतलब होता है? हेलो. जो आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज और दी पॉजिटिव क्वालिटीज, वो तो आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी पंक्चुअल, आई एम वेरी लॉयल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी रेगुलर. ठीक है, these या आई एम वेरी, आई ट्राई टू बी परफेक्ट और वट एवर. परफेक्ट वर्ड वैसे हम कम यूज करें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज नोबडी एज अ ह्यूमन इज परफेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर योर वीकनेसेस or what are your negative points, what are your negative qualities, तो आप क्या बताएंगे as an interview, in an interview, as an interviewee, if you would be telling your, please mute yourself, okay, if you would be telling your real weaknesses, then it can be a reason for your rejection. समझ आ रही है आपको बात? If you would say that I'm very short tempered, I'm very short tempered का क्या मतलब है? मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. So if you will tell this to your interviewer, it can be a basic, you can say, reason for your rejection. Why? Because if you're short tempered, तो कल को तो आप भी मुझे थप्पड़ मार सकते हो. Person can actually perceive that. Person can actually think about it, and they can tell you also. That does that mean if you're a short tempered, does that mean that you're going to slap me whenever you will get you will be angry or you will be in anxiety or whatever state, then you're going to actually harm me, or what will you be doing?
I'm really sorry, just give me 2 minutes. Okay, so now how we have to put our negative things in a positive way, or those negative things, whatever we have negative qualities, we can use them in a positive way. किसी के पास कोई idea कि हम किस तरह से कर सकते हैं? Anybody would want to add something कि मेरे अंदर ये negative quality है and I really want to put this in this way so that it is actually a positive try, it becomes my positive trait इन इंटरव्यू. कोई पर्सन ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि ये मेरी मैं वीकनेस बता सकता हूँ और या बता सकती हूँ और ये एक तरह से कंपनी के लिए फायदा होगा? ऐसा कोई पॉइंट आप में से कोई अगर ऐड करना चाहता है तो मुझे बताइए. क्या हो सकता है ऐसा? सोचिए जरा आप लोग. मैं आपसे पूछ रही हूँ एज एन इंटरव्यूअर. सपोज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके संदीप, यू आर हियर फॉर द इंटरव्यू. आई वुड वांट टू नो, आपने अपनी हॉबीज बता दी हैं, आप मुझे अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्राइट्स बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज बताइए क्या है आप में. तो आप क्या बताएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज आप क्या बताएंगे? तो पॉजिटिव में तो बहुत कुछ है आप बताने के लिए. आप बोल सकते हो रेगुलर पंक्चुअल हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, सब कुछ. हम झूठ भी बोल देते हैं बहुत बारी, चाहे हम वैसे ना भी हों तो भी, है ना. हम वैसा कुछ ना भी अगर कर रहे हो तो भी हम बोल देते हैं इंटरव्यू में, सो दैट हमारा सिलेक्शन हो जाए. आई एम रियली सॉरी, लिटिल बिट इट इज लिटिल मेसी टुडे बिकॉज they were like 1 or 2 person who were there to meet me, तो थोड़ा सा ही हो गया. अभी I'm fine. तो आप बताइए, कोई एक पर्सन आप में से ऐड करना चाहेगा नेगेटिव क्वालिटीज में? नेगेटिव क्वालिटीज में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये हूं मैं और वो पॉजिटिव हो कंपनी के लिए? क्या हो सकता है? बताइए आप में से. सपोज करिए मैं बोलती हूँ, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बोल सकती हूँ वर्कहॉलिक. आई एम प्रेटी मच वर्कहॉलिक. वर्कहॉलिक का क्या मतलब है? मेरे को काम बहुत करना, ज्यादा काम करती हूँ, बहुत ज्यादा काम करती हूँ, मैं वर्कहॉलिक हूँ मैं. मतलब वर्कहॉलिक का मतलब होता है आदमी खाली नहीं बैठ सकता, जो उसको कुछ ना कुछ काम करना है. मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ओवर वर्कहॉलिक हूँ, खाली नहीं बैठ, आई कांट सिट आइडल. दिस इज माई नेगेटिव पॉइंट दैट आई कांट सिट आइडल. मुझे आप बोलो खाली बैठना है यहाँ पे आपको 1 घंटा, मैं नहीं बैठ सकता या मैं नहीं बैठ सकती. सो यू कैन टेल, यू कैन आंसर दिस नेगेटिव ट्राइट इन सच अ वे कि मैं आई एम वेरी ओवर एनर्जेटिक, आई एम वेरी वर्कहॉलिक या ओवर वर्कहॉलिक, आई कांट सिट आइडल, I need to work something or the other all the time and I can't sit idle. तो इससे क्या हुआ? आपने बता दिया नेगेटिव भी आपका पॉइंट हो गया ये, और ये कंपनी के लिए तो फायदा हो गया ना. आप खाली नहीं बैठ सकते, आप काम बहुत ज्यादा कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा हो गया. हालांकि इंटरव्यूअर को ये सब चीजें पता है आजकल की क्या ट्रिक्स हैं. लोग वर्कहॉलिक बोलेंगे, ओवर एनर्जेटिक बोलेंगे अपने आप को. ओवर एनर्जेटिक का क्या मतलब है? मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि ओवर एनर्जेटिक हूं मैं. तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो सुबह 9 बजे काम स्टार्ट करते हैं, आप खुद अपनी भी एनर्जी देखिए. सुबह 9 बजे की जो क्लास है उसमें आप इतना फ्रेश और अच्छा फील करते हैं, उतना आप अगर शाम की क्लास 3 बजे की जो होती है उसमें आप थोड़ा ड्राउजी हो जाते हैं, आदमी थोड़ा सा थक जाता है. मील ले लेते हैं हम लंच का, तो उसके बाद खाने के बाद थोड़ा सा और हम वो हो जाते हैं कि भाई थोड़ा सा हमें नींद आ रही है या हम उतना फ्रेश नहीं फील करते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. अगर कोई पर्सन ओवर एनर्जेटिक बोल रहा है अपने आप को, तो उसका मतलब उसकी एनर्जी तो डाउन हो ही नहीं रही. एनर्जी डाउन नहीं हो रही है तो शाम तक भी वो अच्छे से परफॉर्म करेगा. जितना मॉर्निंग में परफॉर्म कर रहा है उतना इवनिंग में भी करेगा, उस लेवल से, उस जील से, उस फ्रेशनेस के साथ काम करेगा. आप समझ रहे हो? सो इफ समबडी, अपनी वीकनेस हमको इंट्रोडक्शन में नहीं बतानी है. इफ समबडी इज टेलिंग यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, you will not tell them your weaknesses until it is asked. अपनी कमियां हमें नहीं बतानी है, हम पॉजिटिव बातें ही करेंगे. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ऐसा चांस मिलेगा तो मैं ये करूंगा, ये करके दिखाऊंगा. वॉट एवर पॉजिटिव वी हैव टू टॉक, नेगेटिव वी विल नॉट टॉक अंटिल इट इज आस्क्ड. और आज में भी वो क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट आर योर नेगेटिव क्वालिटीज, व्हाट आर योर नेगेटिव क्वालिटीज. अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, टार्डीनेस, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड, फटीक हो जाता है मुझे बहुत जल्दी, मैं बहुत ज्यादा अगर चल लेता हूँ, ट्रैवल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मैं थक जाती हूँ. अब ये भी एक तरह से हमारा है तो नेगेटिव पॉइंट ही, थक जाना, फटीक फील करना, थकान फील करना, है ना. बहुत ज्यादा काम अगर हम लॉन्ग टाइम तक करें तो मतलब ये सारी चीजें हमारी क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं. बट हम इनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं?
ये चीजें हम, जो चीज के लिए कंपनी को लॉस हो जाए वो नेगेटिव पॉइंट हम नहीं बोलेंगे, या नेगेटिव पॉइंट हम सिर्फ वही बोलेंगे जो कि हम पॉजिटिव मैनर में कंपनी के लिए बेनिफिट हो। या फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो आप तो मुझे कल को यू कैन हिट मी, विल यू हिट मी, तो देन आपका फिर आंसर रेडी होना चाहिए। नो सर, अगर आपने बताया भी है नेगेटिव, आपसे पूछा गया और आप बता रहे हो कि आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बट उसके साथ आपको लगाना है कुछ ना कुछ कि आप उसको ओवरकम करने के लिए कर क्या रहे हो। यानी कि अगर मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है और फिर भी मैं उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, तो क्या मेरे लिए बेनिफिट है? मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, I know what my disqualities are, I know what my negative points or negative traits are, and I'm not working on it. गुस्सा आता है तो क्या करो, योगा करो, कुछ एक्सरसाइज देखो करने का, जिससे कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस जो है वो कम हो जाए, आदमी अपना अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके। ऐसे बहुत सारे योगा आसन्स होते हैं जो कि आप, जिससे कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इट शुड नॉट थिंक इन अ बैड वे और इन अ नेगेटिव वे, या उस तरफ ना जाए। ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें क्या और किस तरह से करना है, हमें उस चीज का आंसर बताना है। अगर आप ये कह भी रहे हो कि आई एम लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे किसी गलत चीज पे, या आई कांट स्टैंड डिसऑनेस्टी, सपोज एक ये भी आंसर बन सकता है। अगर मैं एक इंटरव्यू हुई हूँ तो मैं ये भी बोल सकती हूँ आई कांट स्टैंड डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी का क्या मतलब हो गया? जो लोग ऑनेस्टली काम नहीं करते अपना, या झूठ बोलते हैं, या कुछ ऐसा, या आई कांट स्टैंड डिसऑनेस्टी, आई कांट स्टैंड लाइज, आई कांट स्टैंड दिस दोज पीपल हु आर। तो इससे क्या होगा, आप क्या बता रहे हो कि अगर कोई आपसे झूठ बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो यानी कि आप किसी को आसपास अपने झूठ नहीं बोलने दोगे, ये भी एक अच्छी बात है। अगर आप बोल रहे हो कि आई कांट स्टैंड डिसऑनेस्टी, यानी कि आप कोई आदमी अगर ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा या ऑनेस्ट नहीं है तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप वो भी चीज नहीं होने दोगे अपने आसपास, ये भी एक अच्छी बात है। नेगेटिव तो है एक तरह से कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं झेल नहीं सकता ये चीज, या झेल नहीं सकती ये चीज, या मैं ये चीज को बेयर नहीं कर सकती या फेस नहीं कर सकती। बट ये चीज एक तरह से अच्छी है, अगर आप किसी गलत चीज को फेस नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब आप खुद भी वो चीज गलत नहीं करेंगे। एक पॉइंट आपका ये जा रहा है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे डिसऑनेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई आदमी में, सामने वाले आदमी में डिसऑनेस्टी होती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मैं तो डिसऑनेस्ट नहीं हूँ। पहली चीज तो क्लियर हो गई, डिसऑनेस्ट नहीं हूँ तो मैं ऑनेस्ट हो गई, सामने वाले को भी मैं डिसऑनेस्ट नहीं होने दूंगी, ये भी मेरा दूसरा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। समझ आ रही है? इस क्लास से अगर आपने ये समझ लिया कि अपने इन नेगेटिव क्वालिटीज को आपको किस तरह से पॉजिटिव मैनर में बोलना है, या अगर आप कोशिश भी कर, मैं स्टबर्न हूँ, सपोज मैं स्टबर्न हूँ, आप बोल रहे हो मैं स्टबर्न, स्टबर्न का क्या मतलब होता है पता है ना हम सबको? स्टबर्न का मतलब है कि हम ज्यादातर एक तरह से जिद्दी हैं। अब जिद्दी होना, कोई ऑफिस में तो हमारी जिद देखने के लिए नहीं बैठा, एवरीबडी इज प्रोफेशनल ओवर देयर, हमारे पेरेंट्स तो फिर भी देख सकते हैं एक बार को, लेकिन उस चीज को फिर आपको ऑफिस में या फॉर्मल मैनर में कैसे पॉजिटिव बनाना, यू शुड नो। आई एम स्टबर्न एंड आई परफॉर्म माई वर्क, आई एम वेरी स्टबर्न टुवर्ड्स माई वर्क, whatever I have to do, I have to complete in time, I complete in time, या आई फॉलो टाइमलाइंस। एक ये चीज है कि मैं टाइमलाइन फॉलो करता हूँ या करती हूँ, मुझे अगर बोला कि आज शाम तक ये काम करना है तो मैं टाइमलाइन फॉलो करके शाम तक वो काम कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी। आप समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट्स आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, टार्डनेस, शॉर्ट टेम्पर, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परफेक्शन, अगर आप ये सब चीजें बोल रहे हो तो दिस गोज एज अ नेगेटिव साइन कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। मेसीनेस का मतलब आपकी टेबल पूरी भरी रहेगी क्या? आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं कर पाओगे, इसका मतलब अगर आप मेसीनेस आपके अंदर है या आप मेसी पर्सन हो तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाओगे, फाइलिंग नहीं कर पाओगे, टेबल पे आपके सारे डॉक्यूमेंट ऐसे पड़े रहेंगे काम पे, तो आप मेसीनेस का मतलब क्या बता रहे हो? तो आपको ये बताना, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं मेसी पर्सन हूँ या मैं पुअर टाइम मैनेजमेंट है मेरा, बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू वर्क ऑन इट, आपको ये बताना है कि आप क्या कर रहे हो उसको ठीक करने के लिए। आप अगर बता रहे हो कि मेरा बहुत पुअर टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाता, यानी कि इसका मतलब आप डेली लेट आओगे, पुअर मैनेजमेंट है तो लेट डेली आओगे इसका मतलब। तो उसके साथ अगर आप कुछ नेगेटिव चीज बता रहे हो आप बताओ उसको क्लियरली, बट आप ये भी बताओ कि क्या आप कर रहे हो उसको ओवरकम करने के लिए, ये साथ में आएगी लाइन, वरना आप नहीं बताओगे अपनी वीकनेसेस और, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना ही पड़ेगा। ये भी नहीं बोल सकते आप कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है सर, मैं तो परफेक्ट हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। We will not say that I am perfect.
In interview, we will not say कि I have no disquality, I have no negative quality, या मेरा कोई drawback नहीं है, मैं बिल्कुल perfect हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा. No human is perfect. No human is perfect. Only God can be considered to be perfect. Humans are not perfect. So anybody who is calling himself a perfect person is not good for anything, I would say. ठीक है, तो इंटरव्यू के ऊपर बहुत गलत इंप्रेशन जाता है. वो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, ये अपनी तारीफ, अपना अपना मैं फैक्टर बहुत है इसमें. ना तो ये टीम के साथ काम कर सकेगा, ना ये और लोगों के साथ काम कर सकेगा, ना ये जो बॉस का कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकेगा, और ना ही ये एज अ टीम वी पे काम करेगा. मी नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप टीम मेंबर हैं तो टीम में काम कर रहे हैं, आपने कुछ काम करके, आपके साथ वाले ने भी कुछ काम करा, वो सारा काम इकट्ठा हो गया, एक काम कंप्लीट हुआ, बड़ा एक काम कंप्लीट हुआ, एक प्रोजेक्ट काम हो. कोई भी उनमें से टीम मेंबर्स में अपना काम एक ठीक नहीं करेगा, वो पूरा काम नहीं हो सकता. तो एक आदमी तो सफिशिएंट हुआ ही नहीं कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम ये कभी नहीं बोल सकते कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम परफेक्ट, आई कैन डू एवरीथिंग. क्या कोई भी इंसान हर काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना. हम कोई एक कोर्स पढ़ते हैं, अब आप लोगों ने मैनेजमेंट चूज किया, बहुत सारे लोग हैं जो मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं ना, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ रहे, मैनेजमेंट भी नहीं पढ़ रहे, आर्ट्स पढ़ रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में, अपने साथ कुछ बेटरमेंट नहीं कर पा रहे हैं. समझ रहे हो आप? तो हम क्या चूज करते हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. और हर किसी के अंदर नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, और उनको हमें पता होना कि हमारे पास क्या नेगेटिव क्वालिटीज है, ये एक बहुत अच्छी बात है. अपनी कमियां पता होना बहुत अच्छी बात है. क्यों? पता होंगी तभी हम उन पे काम कर पाएंगे. दो बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है सेल्फ इंट्रोडक्शन में. अपनी वीकनेस के बारे में अगर आप बताना चाहते भी हैं तो लास्ट में बिल्कुल बताएंगे. पहली चीज तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी वीकनेस को ना बताएं. आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा करें. बॉर्न एंड रेज, मेरा नाम ये है, मैं बॉर्न एंड रेज यहाँ हुआ हूँ. ब्रॉट अप भी एक वर्ड है, बोलते हैं ना हम सब, आई वाज ब्रॉट अप इन फरीदाबाद, आई वाज ब्रॉट अप इन दिल्ली. ब्रॉट अप मतलब एक तरह से आपका परवरिश होना, उसको बोलते हैं ब्रॉट अप. लेकिन वो ब्रॉट अप वर्ड को अगर हम ना यूज करके रेज्ड वर्ड यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है. लिख लीजिए सब चीजें, कई नोट्स में भी नहीं मिलेंगी ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ब्रॉट अप वर्ड एक तरह से ऑब्सोलीट वर्ड हो चुका है, आउटडेटेड जिसे कहते हैं ना, आउटडेटेड वर्ड हो चुका है, और नया वर्ड है रेज्ड. So I was born and raised आप बोलें तो ज्यादा अच्छा है. उसके बाद आपने अपना बता दिया अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर आप अपने हॉबीज के बारे में बता सकते हैं, फिर आप अपनी पॉजिटिव चीजों के बारे में बता सकते हैं कि मेरे ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज है मेरे अंदर. अगर उसके बाद आप चाहें, पहली चीज तो मैं बोलूंगी नहीं करें. अगर आप फिर भी चाहते हैं आप अपनी डिसक्वालिटीज बता दीजिए, लास्ट में बताइए कि आई हैव सम वीकनेसेस आल्सो, आई वुड लाइक टू मेंशन दीज आर माय वीकनेसेस. जहां आपने वीकनेस मेंशन किया, चाहे तो वो सेल्फ इंट्रोडक्शन में कर रहे हैं या फिर सामने वाले से क्वेश्चन आपको आ रहा है तब आप मेंशन कर रहे हैं, उसके साथ आप बताएंगे व्हाट यू आर डूइंग टू ओवरकम. अदरवाइज आप एक अच्छे इंटरव्यू ही नहीं है और आप नहीं कर पाएंगे क्रैक. आप सिंपली बताएंगे यस आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दिस क्वालिटी एंड आई हैव डन आल्सो, आई एम इन मिडल ऑफ दैट टू वर्क ऑन दैट सो दैट मैं शॉर्ट टेम्पर्ड ना रहूं, मुझे इतना गुस्सा ना आए या व्हाटएवर. एंड आई एम डूइंग योगास for that. I'm doing yogasans for that. I take out time for myself, 30 minutes time, 15 minutes time for myself in the morning and I do yoga. कुछ ऐसा आपको बोलना है. और ये सिर्फ अगर आप बोलने के लिए ना करें और करने भी लगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी. फिर तो आप एक तरह से ओवरकम सच में ही कर लेंगे अपनी क्वालिटीज को. तो हमें अपनी डिसक्वालिटीज के बारे में पता होगा, ओवरकम कैसे करना वो भी पता होगा, हमें बताना है. क्लियर है? मेन था नेगेटिव का. क्वालिटीज जो हैं, अच्छी बातें, वो तो आप सबको पता ही है. हर कोई बोल सकता है अपने बारे में कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगा, हाँ टाइम भी एक्सटेंड कर लूंगा, नौकरी जगह 10 घंटे काम कर लूंगा, बस नौकरी मिल जाए. होता है ना ऐसा. तो ये सब चीजें जो पॉजिटिव है वो तो आप बोल सकते हो कि क्या है. नेगेटिव क्या है चीजें हैं, पहली बात तो हमें पता ही नहीं होता. जैसे आप में से किसी ने अब जवाब नहीं दिया, मैंने आपको पूछा था कि आप क्या क्वालिटीज को आप रख सकते हो पॉजिटिव मैनर में, तो किसी ने जवाब नहीं दिया. तो एक तो ये कि हमें पता नहीं होता. दूसरी चीज अगर पता चल भी गई तो हमें नहीं पता कि हम उसको ओवरकम कैसे करना है. क्या कौन सी डिसक्वालिटी ऐसी है, कौन सी ऐसी हमारी नेगेटिव क्वालिटी है जो हम इंटरव्यूअर को बता सकते हैं.
हर चीज आप बता भी नहीं सकते वहां पे कि मुझे ये ऐसा, मेरा ये डिसक्वालिटी है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं लड़ने लग जाता हूँ, मैं बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करता हूँ, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता हूँ। क्या हम ये सब चीजें बोल सकते हैं? वी कैन नॉट से दैट। क्या आप वो गंदी लैंग्वेज बोल सकते हो किसी इंटरव्यूअर को, किसी को भी, अपने पीयर को, कलीग को, जो आपके साथ काम करता है, अपने मैनेजर को, चाहे वो आपको कितना ही दुखी कर रहा हो, कितना ही नुकसान आपको दे रहा हो, आपको चुपचाप सुनना है। तो आप बता सकते हो मैं बहुत पेशेंट हूँ। अगर आप ये कर सकते हो, मैं किसी की बातें सुन सकता हूँ, तो आप बोलोगे मैं बहुत पेशेंट हूँ, आई कैन लिसन टू दी थिंग्स वेरी पेशेंटली। अब आप बोल रहे हो ना पेशेंट हूँ, तो वो आपका पेशेंस लेवल चेक करेगा खुद ही। कैसे हो सकता है? वो आपको एक क्वेश्चन पूछे और आपका पेशेंस लेवल चेक करे कि ये मेरी बात को ढंग से सुन के तब आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बात करना चाहते हैं। आपको समझ आ गया कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है इंटरव्यूअर, उसको क्वेश्चन को पूरा करे बिना ही आपने आंसर देना शुरू कर दिया। यस सर, आई हैव डन दैट, यस यस यस, लेट मी टेल यू, ये गलत हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि मैं पेशेंस में, मुझ में बहुत है, एक अच्छी क्वालिटी है मेरे अंदर, एक मैं पेशेंटली सुनता हूँ, और दूसरी ही तरफ आप एग्जांपल दे रहे हो कि उसको उसका क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो, तो ये मिसमैच हो गया। उसको समझ आ गया कि गलत बोल रहा है ये, या ये चीज, ये जो है आदमी झूठ बोल रहा है कि पेशेंस लेवल है इसमें। पेशेंट तो ये पेशेंट ही मेरा क्वेश्चन तक नहीं सुन पा रहा है 1 मिनट का, और क्या पेशेंस होगा इसमें? सो वी हैव टू बी काम, वी हैव टू बी रिलैक्स्ड, वी हैव टू बी पेशेंट इनफ। बट हमारी बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से ये कभी नहीं लगेगा कि हम स्लो हैं काम करने में। वी शुड बी एक्टिव, प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी देयर। हम चाहे कामली बैठे हैं, वी आर लाइक, आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड आई एम टेकिंग योर क्लास लाइक दिस, आई एम कीपिंग, आई विल कीप, मैं बोलते जा रही हूँ, वो क्लास मोनोटोनस हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ एक जगह बैठ के एक ही टोन में कुछ कुछ बोलते जाऊँ आपको, वो क्लास आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगी। रादर कि मैं एज अ ह्यूमन, जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कभी आप इस तरह से बैठ गए, कभी आप इस तरह से बैठ गए, या जो बेसिक नेचर है हमारा पानी पीने का या कुछ है, ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको पानी पीना है। अगर प्यास लग रही है तो ये नेचुरल चीज है, रिक्वायरमेंट है पानी पीना। अगर आप पानी पी लेंगे इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू ऑल्सो, इट इज नॉट रॉन्ग। बट ऐसा भी नहीं हो कि आप कुछ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोलने के बाद आप चुप हो रहे हो, एक पॉज ले रहे हो, सामने वाला पर्सन वेट कर रहा है कि आप पानी पियो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बट नॉट ड्रिंकिंग वाटर एंड यू आर थर्स्टी, आपसे बोला नहीं जा रहा, आपकी आवाज नहीं निकल रही है सिर्फ इसलिए कि पानी नहीं पी पा रहे हो आप, या आप थोड़ा सा नर्वस कर रहे हो कि पानी पीऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? हम वो चीज कर सकते हैं। Maybe at the time when he is asking question, when you are not getting the chance to speak, और सामने वाला पर्सन आपको कुछ बात बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आप पानी पी सकते हो। ऐसा कुछ भी आपको करना है जो नेचुरल है, जो हर कोई करता है। आपको वो चीज अगर करनी है, पानी पीना है, तो आप कोशिश करिए सामने वाला जब बोल रहा है तब आप पी लीजिए। बीच में आप बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप पानी पी रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बट अगेन आई वुड से कि अगर हमें मैंडेटरी है तो हमें लेना है पानी, मुझे पीना है तो पीना है भाई। दिस इज द टाइम व्हेन आई थिंक आई एम फीलिंग, माय बॉडी इज फीलिंग टू हैव वाटर, आई वुड वांट टू हैव वाटर। इफ द पर्सन इज ऑफरिंग यू टी, कॉफी और समथिंग लाइक दैट, you are thinking to have it, please have it, tell them. And if you are not if you don't want it, it is not mandatory कि आपको जरूरी जबरदस्ती वो को सामने वाला चाय पी रहा तो आपको भी पीनी है, आपका मन नहीं है, so you can say no, I'm good without it, yeah I'm fine without it, yeah I'm not feeling like having it right now। कुछ भी ऐसा आप एक पोलाइट आंसर देके मना भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उस चीज के लिए बोल भी सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? आज हमने इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन पढ़ लिया है कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव ट्राइट्स को किस तरह से बोल सकते हैं। सो संदीप, आर यू रेडी बेटा? कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? Yes, ma'am. ठीक है, प्लीज स्टार्ट। सो एवरीवन, संदीप इज विद अस टुडे, और संदीप भारद्वाज के साथ मैं एक मॉक सेशन करने वाली हूँ, और हम सब लोग इसी के साथ कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, या क्या वो गलत बोल रहे हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं, वो सब मैं बताती रहूंगी, और हम उसको सभी लोग लर्न करेंगे। क्लियर है सभी को? सो आई एम एक्टिंग एज एन इंटरव्यूअर, आई एम आस्किंग द सिंपल क्वेश्चन। पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला ही, किस तरह से आप वो आंसर करोगे संदीप, वो आप सबको बताना, और जो भी कुछ कमी रहेगी कहीं पर, या उसको हम कैसे बेटर कर पाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो आई एम बीइंग योर इंटरव्यूअर। हाय संदीप, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। कैसे जवाब दोगे? Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon. Okay. I'm fine. So how are you feeling today? Okay. How was your day since morning? What you Fine, did ma'am. since morning? Okay.
Great. So Sandeep, I would like to know something about yourself. Please self-introduce yourself. Okay. My name is Sandeep Bhardwaj. I was born in Uttar Pradesh and raised in Haryana. Oh shit. एक मिनट। एक मिनट फोन गिर गया था। मैम दोबारा से करूं? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. My name is Sandeep Bhardwaj. I was born in Uttar Pradesh and raised in Haryana. Currently, I'm pursuing my BBA from National Institute of Technology. I have completed my schooling and intermediate in Haryana, and my hobbies are playing cricket and football, and also listening to music. Okay. That's it, ma'am. Okay, great. So Sandeep, what kind of music do you listen? You said you listen to the music. I'm pop and soft rock. Great. एक चीज जब मैं ये दोबारा सबको बताना चाहूंगी, पहले भी बता चुकी हूँ शायद, अगर हम ये अपनी हॉबी में कह रहे हैं कि आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक बोलना इज रॉन्ग, लिसनिंग टू म्यूजिक इज राइट थिंग. एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ दिस. लिसनिंग टू म्यूजिक बोलेंगे हम, लिसनिंग म्यूजिक कुछ नहीं होता. क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी बाकी 16 लोग इंक्लूडिंग संदीप, सबको ये समझ आ गया कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, सो लिसनिंग म्यूजिक इज रॉन्ग, वो कुछ वर्ड नहीं होता. लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग के बाद टू आएगा ही. किस चीज को सुन रहे हैं हम? को, म्यूजिक को सुनना, राइट? म्यूजिक को सुनना हमारी हॉबी है. तो लिसनिंग टू म्यूजिक, हम हिंदी में भले ही ना बोले कि मैं म्यूजिक को सुनता हूँ, हम हिंदी में बोल सकते हैं म्यूजिक सुनता हूँ या सुनती हूँ या मेरी हॉबी है, लेकिन इंग्लिश में इट इज लिसनिंग टू म्यूजिक. ऑलवेज लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लीज रिमेम्बर. Clear everybody? Okay, Sandeep, so I would also want to know that what are your negative qualities? What are your yes, negative qualities? I would want to know what are your weaknesses? Weaknesses. I'm short-tempered, but only in case when I see some dirt and uncleanness in my surroundings, I really get angry on that things. Okay, very great, very good answer. So yes, if somebody is asking you what are negative qualities, so you can tell that. अगर आप बोल रहे हो short tempered हूँ, तो आप ये बोलोगे कि short tempered में फिर आप बताओगे कि किस चीज पे मुझे गुस्सा आता है. I am very short tempered when I see dishonesty around me, or when I see people lying around, or when I see people showing off. शो ऑफ करते हैं ना कुछ लोग, शो ऑफ करते हैं मैं तो बहुत रिच हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, ऐसा कुछ करके करते हैं और वो होते कुछ नहीं है, उनमें कुछ होता नहीं है. क्योंकि जो इंसान बहुत कुछ होता है वो अपनी क्वालिटी से बोलता है, वो खुद नहीं बोलता, उसकी क्वालिटीज बोलती हैं. मैं ये बोलती हूँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ जी, ऐसा हमें अपने आप को नहीं बोलना, हमें अपनी तारीफ नहीं करनी है. लेट अदर्स स्पीक दैट, और लेट आवर वर्क स्पीक. ठीक है? तो वो शो ऑफ हो जाता है. सपोज मैं हूँ बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब घर से आती हूँ और मैं दिखाती हूँ बहुत महंगे कपड़े पहन के, मैं बहुत महंगे बैग्स खरीदती हूँ, ब्रांडेड चीजों पे जाती हूँ, या है ना, या हमेशा ब्रांड्स की बातें करती हूँ. तो वो क्या हो गया एक तरह से कि वो इंसान शायद घर तो उसका अच्छा उतना हो ना, शायद वो उतना रिच फैमिली से बिलोंग ना भी करता हो, शायद वो उतना रिच मतलब कमाता भी ना हो बहुत बहुत अच्छा, बट वो अपना शो ऑफ कर रहा है कि मैं बहुत रिच हूँ. शो ऑफ करना इज वेरी रॉन्ग. ये कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, मैं भी उनमें से एक हूँ कि मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है. अब हम जो हैं और जैसे हैं, रियलिस्टिक वैसे हैं हम, राइट? हम अपने आप को इम्प्रूव जरूर करते रहना चाहिए हमें, हर किसी को. वी शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू मेक आवर टुडे बेटर देन येस्टरडे. सो आवर टुमारो इज गोइंग टू बी बेटर देन टुडे, यानी कि कल जो होगा वो आज से अच्छा होना चाहिए. बस ये अगर हम कर रहे हैं तो हमारी लाइफ एक राइट डायरेक्शन में जा रही है. क्लियर है? एक राइट डायरेक्शन में जा रही है. अब हम नहीं कुछ चीज अफोर्ड कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल जो कि आप समझिए बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक दिन में वो 1-1 लाख रुपए तक के कपड़े पहनते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं.
हम भी, हमारा भी एक ड्रीम है कि हम ऐसा करना चाहेंगे, तो करना चाहेंगे, उसके लिए हमें कोशिश करते रहनी है। हम भी कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा अर्न करें, कुछ करें, एंड वन डे वी विल आल्सो बी डूइंग दिस, बट वी आर लाइक नॉट फुलफिलिंग आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और लाख रुपए का कपड़े जाकर ले आए खाने के लिए अगले चाहे 10 दिन के लिए ना हो, इज दैट अ राइट सिचुएशन? इट इज नॉट अ राइट सिचुएशन। और वो चीज क्या होगी फिर? शो ऑफ करने की होगी। तो शो ऑफ हमें किसको करना है? हमें किसको शो ऑफ करना है ना? वो 1 लाख रुपए वाले कपड़े अगर हम लेकर भी आ गए, किसी को कभी दिखाने के लिए पहन भी ले कि ये मैं इतना महंगा लेके आया, हम लोग करते हैं ना, बहुत सारे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, लड़कियां बहुत महंगे महंगे बैग्स खरीदती हैं, लड़के बहुत महंगे महंगे शूज खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं महंगी महंगी, है ना? अब जैसे कि आई शो यू दिस वॉच, माय वॉच, दिस वॉच इज 12,000 रुपीज, 12,000 की ये घड़ी है। अब या तो मैं ये घड़ी को आसानी से खरीद के पहन सकती हूँ, एक तो है कि मैं आसानी से 12,000 की घड़ी खरीद सकती हूँ, ठीक है। एक है कि मैंने अपना 10 महीनों का सेविंग करके वो करके खरीदा है, दैट इज ऑल्सो ओके। एक है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उधार लेके 12,000 की घड़ी खरीदी है। थर्ड सिचुएशन इज रॉन्ग। क्लियर है? सो जैसे अभी संदीप ने कहा कि जो भी है उनको वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, और उनको कोई भी अराउंड सराउंडिंग्स में वो कुछ गलत होते हुए देखते हैं, सो ही उनको गुस्सा आता है, ही कैन नॉट स्टैंड दैट, मे बी डिसऑनेस्टी हो गई या शो ऑफ भी, जैसे मैंने बोला, तो ये सारी चीजें हो गई। शो ऑफ करना, कि शो ऑफ कुछ लोग करते हैं, सो आई कांट स्टैंड दैट, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों के लिए, एंड आई रियली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू डू जनरली टू अवॉइड दिस इज क्या, कि भाई मैं तो कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों से दूर रहने का। तो आप ये बोल सकते हो कि सर या मैम, जो भी आपका इंटरव्यूअर है, कि आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आई कांट स्टैंड डिसऑनेस्टी, और आई कांट स्टैंड द पीपल हु आर लाइक हु शोज ऑफ अ लॉट, बट व्हाट आई डू इज आई रिमेन अवे फ्रॉम देम, आई ट्राई टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम। क्लियर है संदीप? क्लियर है चीज? इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि मैं उनसे दूरी बना के रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि ना ही वो मेरे आसपास आएंगे और ना ही मुझे उनसे गुस्सा आएगा। एक सेकंड में ना अटेंडेंस आप लोगों की कर रही हूँ, क्लास 5 मिनट की है, बस ओवर होने वाली है। आज बच्चे कम ही है क्या क्लास में? और कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जिस तरह से हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी लास्ट सेमेस्टर में किया था। कल हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 3rd यूनिट हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रायड्स हमें किस तरह से करना है, जो टॉपिक का कंटेंट है वो मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगी। मैं आपको टॉपिक में जो कंटेंट है, एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको कुछ नहीं समझाती हूँ, मैं आपको जेनरिक मैनर में समझाती हूँ कि आपको एक्चुअली में टॉपिक का क्या मतलब है वो समझ आ जाए। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गया, कल हमने पढ़ा था। आज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ट्राइट्स पढ़ लिए। पॉजिटिव हम किस तरह से बता सकते हैं, नेगेटिव भी संदीप ने बहुत अच्छे से आंसर किया, और वो बता दिया कि हम इस तरह से नेगेटिव ट्राइट्स के बारे में अपना इंटरव्यूअर को इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए इसी में ना एक आपको मैंने ये सैंपल है, जो हाईलाइटेड सा है ना, हेलो सर, हेलो मैम, इट इज माय प्लेजर टू स्पीक विद यू, नो दैट, ये है बेसिकली सैंपल आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन का। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा हो कि मुझे क्या बोलना है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, ये याद कर लेना। ठीक है, इसमें ये है कि आप देखिए इट इज माय प्लेजर टू स्पीक विद यू, पहली लाइन आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर, और इट्स रियल प्लेजर टू गेट इंटरव्यूड बाय यू, और टू स्पीक टू यू, और टू बी एट दिस ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, और टू बी एट दिस गुड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ भी करके आप बोल सकते हैं। सेकंड आपका आ गया, सिटी कहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, या कहाँ से आप हैं, बेसिकली कहाँ पे आप रहते हैं। बॉर्न जब आपको बोलना है तो एक ही सिटी का नाम बोलना है, एक ही स्टेट का नाम बोलना है, एक जगह का नाम बोलना है जब आप बॉर्न है। आप ये नहीं बोल सकते कि आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ हरियाणा, इट इज रॉन्ग टू से, क्योंकि पैदा आदमी एक ही जगह होता है। सो यू से आई वॉज बॉर्न इन यूपी, एंड रेज्ड जो है, हम जब एक तरह से अपब्रिंगिंग हो रही है हमारी, या हम जो भी है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मेनी पार्ट्स ऑफ हरियाणा, मेनी पार्ट्स ऑफ यूपी, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। किसी का अगर इधर ट्रांसफर होता जा रहा है, सपोज किसी के फादर आर्मी में है, तो आप ये बोल सकते हो कि आई वाज रेज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक यूपी, केरला चले गए, असम चले गए, वहां चले गए जहां पर जैसा पोस्टिंग रहा आपके फादर का कुछ है। ठीक है, तो ये वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है,
हाँ जी बेटा। मैम जिसकी फादर वैसे मैम नहीं जो है ट्रांसफर, तो मैम फिर वो नहीं बोलेगा मैंने पास तो हरियाणा। नहीं समझ आया, दोबारा बोलो। मैम आपने कहा था ना कि ये नहीं, आपने दो सिटियों का नाम नहीं लेना, तो आपने ये कहा था कि रेज्ड इन मैनी पार्ट ऑफ हरियाणा, तो जिसका ट्रांसफर नहीं हुआ और मैम जिसका कोई बयान फिर नहीं, आप तो वही मैम बोलोगे जैसे, तो फिर तो एक ही बोलोगे ना बेटा। जैसे अभी संदीप ने बोला कि आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन, सपोज किसी का पैदाइश भी और रेज भी वो एक ही जगह हुआ है, दिल्ली में हुआ है सपोज, तो आई विल से कि आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, कि मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ। सो एक लाइन में बात खत्म, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, सब कुछ उसमें आ गया कि कहीं नहीं गए, कोई कहीं नहीं गया, यहीं पैदा हुआ, यहीं पले बड़े, यहीं एजुकेशन है, सब कुछ यहीं है। तो आपकी, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो तो एजुकेशन होनी भी चाहिए फिर वो सारी दिल्ली की, या जहां पर आप बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि आई वाज रेज्ड इन हरियाणा सपोज, और आपकी क्वालिफिकेशन जो आप नीचे दिखा रहे हो, 10th आपने, 12th आपने स्कूलिंग करा, वो किसी दूसरे स्टेट से करा। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सच होना चाहिए, है ना। या अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ झूठ भी प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, इस तरह से बोलूंगा, तो रिज्यूमे में वो झूठ पकड़ा नहीं जाए, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ मैं दिल्ली में रही हूँ हमेशा, मेरी एजुकेशन मैं दिखा रही हूँ कि वही उसी स्टेट की है, बिहार के किसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ मैं, तो कहाँ से मैं रेज हो गई वहां पे। इंटरव्यूअर क्लियरली बोलेगा ना। आप तो बोल रहे हो कि रेज्ड इन दिल्ली है आपका है, एजुकेशन आपने बिहार से करी है, दिल्ली में बैठ के पढ़े हो, क्लियर है। तो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है कि इंटरलिंक्ड हो सारी चीजें और क्लियरली दिख जाए, वो इमीडिएटली वो उसने पढ़ा होता है आपका रिज्यूमे, जो इंटरव्यूअर है उसने आपका रिज्यूमे पढ़ लिया है, कहाँ से पढ़ के आया है, कितना पढ़ा है, कितना एजुकेशन में क्या परसेंटेज है, समझ आ जाता है उसको, किस स्टेट से आप आए हो, कहाँ से आए हो, और आपका एक्सेंट से भी वो पहचान लेगा। अगर आप बोल रहे हो ना आई वाज रेज्ड इन दिल्ली, और कोई आदमी रहा यूपी में है, सपोज यूपी में रही हूँ पूरे पूरे लाइफ टाइम, और आप बोल रही हूँ आई वाज रेज्ड इन दिल्ली, दिल्ली के आदमी के बोलने का तरीका अलग है, यूपी के आदमी के बोलने का तरीका अलग है, कोई भी पहचान लेगा आसानी से कि ये यूपी की लैंग्वेज बोल रहा है या ये बिहार की लैंग्वेज बोल रहा है, पंजाबी है तो पंजाब की लैंग्वेज बोल रहा है, एक्सेंट आ जाता है ना। जो दिल्ली में ही पैदा होके पूरा दिल्ली में ही पला बड़ा है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो किसी भी रीजन का भी हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, दिल्ली वाली लैंग्वेज बोलेगा ना, क्लियर है। पंजाबी जो है वो पंजाबी जो एक्सेंट आता है, आपने देखा होगा पंजाबी जब इंग्लिश भी बोलते हैं उनका उसमें भी पंजाबी एक्सेंट आता है, अंग्रेजी बोलने में भी पंजाबी एक्सेंट आता है, बिहार से जो लोग होते हैं उनका अंग्रेजी बोलने में भी थोड़ा सा बिहारी एक्सेंट आता है, समझ आता है कि ये पर्सन कहाँ से है। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम से पकड़ा जाता है, आपकी एजुकेशन में समझ आ जाता है आदमी को कि इसने बिहार से पढ़ा हुआ है, अभी बोल रहा है कि दिल्ली में पला बड़ा हूँ, ठीक है ना। तो ये वेरी गुड क्वेश्चन था अनुपम आपसे भी, और संदीप आपने काफी अच्छा बोला। वी कैन ऑलवेज ट्राई टू बी मोर कॉन्फिडेंट टू स्पीक, हम गैप नहीं देंगे बोलने में बहुत ज्यादा सोच के नहीं बोलेंगे। संदीप थोड़ा सा आपने गैप लिया, बॉर्न एंड रेस्ड के बाद आप क्वालिफिकेशन आपने बताई, बट आपने बहुत सोचने में टाइम ले लिया, यू टुक लाइक 10-15 सेकेंड्स, आप बिल्कुल रुक गए, तो उससे लगता है कि आप ब्लैंक हो गया है, बंदे को पता ही नहीं अपने बारे में, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। बाकी अच्छा था, आपने अच्छा बोला। मैं चाहती हूँ कि सब लोग कॉन्फिडेंटली एटलीस्ट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन विद गुड एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी हमारे हैं क्वालिटीज के साथ रेडी कर लें, और ये इंटरव्यू में आप के लिए आप अपना तैयारी करना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें। आप सभी लोग अभी भी झिझक है आप सब में, बहुत डर रहे हैं, कोई नहीं सामने आके बोलता कि मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होना चाहिए, आप सब लोगों का इतना आना चाहिए नाम कि सारे लोग बोल रहे हैं करना है करना है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, मैं बैठी रहती हूँ, पूछती हूँ बताओ भाई कौन आ रहा है, बताओ भाई कौन आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप सबको आना चाहिए क्योंकि आपको लर्न करना, आप ये समझिए आप नहीं बोल रहे हैं आपका लॉस है, फीस सबने दी है, पार्टिसिपेशन 2 लोग कर रहे हैं, क्यों। क्लास अभी तो ओवर होने वाली है हमारी, अब कल से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट जो भी होगा चाहे मॉक इंटरव्यूज हो या